Assalamu alaikum, dear students. Dear students, we are discussing about resources, their concept, classification, and management. In the previous videos, we discussed about resources, their concept, and today we are going to discuss on the classification of resources. First of all, resources can be classified into two groups. Number one is natural resources, and number two is man-made resources. On the basis of origin, resources can be classified into further two groups, that is biotic resources and abiotic resources. We are aware that biotic resources are obtained from the biosphere. They are obtained from living and organic matter, जानदार चीज़ों से. Abiotic resources come from non-living and non-organic material such as air, metals, ores, iron ore, वगैरह वगैरह etc. Dear students, today we will discuss on the basis of exhaustibility. Exhaustibility means ख़त्म होने के बुनियाद पर या थक जाने के बुनियाद पर कौन से रिसोर्सेज ख़त्म हो जाते हैं यूज़ करने से और कौन से रिसोर्सेज जो हैं फिर से रिजनरेट होते हैं जो ख़त्म न होने वाले हैं. तो resources can be grouped into two categories on the basis of exhaustibility. Number one is renewable resource and number two is non-renewable resource. अब renewable resources क्या है? देखो बच्चों, renewable जो resources हैं इनको हम inexhaustible resources भी कहते हैं. Inexhaustible. हमें ये पता ही है कि मैन इज डिपेंडेंट. मैन इज डिपेंडेड ऑन रिसोर्सेस सम और द अदर वे, या हम ऐसे कहेंगे वन वे और द अदर वे मैन इज डिपेंडेंट ऑन द रिसोर्सेज. हम ऐसे कहें कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वी आर डिपेंडेड ऑन रिसोर्सेज. Resources include water bodies, including oceans, seas, rivers, ponds, and fresh water. The land, soils, rocks, forests, animals, fossil fuels, and minerals. These resources are termed as natural resources. The resources which are used by mankind from the starting of human life, our ancestors, हमारे आबा व अजदाद, बाप दादे used these resources for lighting purpose. कभी किया इस्तेमाल लाइटिंग पर्पस के लिए, कभी किया इस्तेमाल ट्रांसपोर्टेशन के लिए जैसे वाटर, कभी किया इस्तेमाल इन रिसोर्सेज को शेल्टर के लिए, कभी किया इनको इस्तेमाल हीटिंग के लिए, कभी किया इनको इस्तेमाल प्रोटेक्शन फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स के लिए, वगैरह वगैरह एटसेट्रा. A few examples of renewable resources are sun, wind, tidal energy, forests, mountains, soil, water bodies, animals, and wildlife resource. We may say
हम कह सकते हैं कि some resources have the ability to renew themselves in a given period of time. Plants and animals have the ability to regenerate themselves. They are renewable resources. Metals and minerals obtained from earth are referred to an exhaustible resources. Once they are used or once these minerals are extracted यानी निकाला जाता है ज़मीन से, they cannot be replaced. उनकी भरपाई हम कर नहीं सकते। फिर है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, इनको हम एग्जॉस्टेबल रिसोर्स भी कहते हैं। जो नॉन रिन्यूएबल है इनको हम एग्जॉस्टेबल रिसोर्स भी कहते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं द रिसोर्सेज विच कैन नॉट बी इजीली रिप्लेस्ड वंस दे आर डिस्ट्रॉयड are called as non-renewable resource. A few examples of non-renewable resources include minerals, fossil fuels हैं, land है, minerals हैं, वगैरह वगैरह। प्यारे बच्चों, डियर स्टूडेंट्स, ये बात आपको पता होनी चाहिए कि जो रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज हैं, रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज हैं, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी आर इजीली अवेलेबल, दे आर इको फ्रेंडली, माहौल दोस्त हैं, वो माहौल को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। कौन? नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। दे आर पोल्यूशन फ्री, माहौल को आलूदा नहीं करते हैं, गंदा नहीं करते हैं। अब इसकी कौन सी मिसाल है? सोलर एनर्जी है, शमसी तवानाई ताकत, एंड विंड एनर्जी, हवा की ताकत तवानाई, टाइडल एनर्जी, समंदरों से उठने वाली लहरों की ताकत, बायोगैस, जियोथर्मल एनर्जी और द वेरियस नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज। अब जियोथर्मल एनर्जी क्या है? जियोथर्मल एनर्जी वो एनर्जी है दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय इंटरनल हीट ऑफ अर्थ। जमीन जो एक अंदर से गर्म है, ये पिघली हुई है। इसके साथ है अब कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है? यह था नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। अब कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? द नेचुरल एनर्जी रिसोर्सेज विच आर प्रेजेंट इन ए लिमिटेड क्वांटिटी and are being used for a long time. They are also called non-conventional sources. Once they are depleted, एक बार वो खत्म हो गई, they cannot be generated. For example, मिसाल के तौर पर हम पेट्रोलियम की बात लेते हैं, नेचुरल गैस की बात लेते हैं, कोल की बात लेते हैं। अब पेट्रोलियम, natural gas, coal are some examples of conventional sources of energy. तो प्यारे बच्चों, अब आपको ये बात समझ आ गई कि ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टेबिलिटी हम रिसोर्सेज को दो ग्रुप में बांट सकते हैं। एक को हम कहते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज या इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज, दूसरे को कहते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज यानी एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज। प्यारे बच्चों, you know that solar energy is renewable and on the other hand non-conventional resource of energy. ये तो आप जानते हैं कि the sun is a huge glowing sphere of hot gas. इसका ज़्यादा हिस्सा जो है, मोस्ट ऑफ द गैस जो जिससे बना है, दैट इज हाइड्रोजन
and which is about 70%, 70%, and helium is about 28%. The core of the sun is very hot and there is so much pressure. इससे क्या होता है? प्रेशर से न्यूक्लियर फ्यूजन, FUSION, न्यूक्लियर फ्यूजन टेक्स प्लेस. हाइड्रोजन, जिसकी सिंबल H है, पता है आप सबको, इज चेंज्ड टू हीलियम, जिसकी सिंबल हीलियम की है He. न्यूक्लियर फ्यूजन क्रिएट्स हीट एंड फोटॉन्स लाइट. ये फोटॉन्स लाइट क्या होता है? फोटॉन्स जो होते हैं ये बेसिक यूनिट ऑफ लाइट है. आइंस्टाइन है, उसने ये साबित कर दिया कि लाइट इज ए फ्लो ऑफ फोटॉन्स. सूरज कैसे बना, सोलर सिस्टम कैसे बना, ये दूसरा लेसन है, ये आज नहीं हो सकता. ये नेबुला थ्योरी वगैरह, इसके साथ हम नहीं छेड़ेंगे. तो फ्यूजन और फिशन. फ्यूजन इज द प्रोसेस दैट पावर्स द सन एंड द स्टार्स. स्टार्स जो है उनमें फ्यूजन ही होता है. इट इज द रिएक्शन इन विच टू एटम्स ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन टुगेदर or they fuse to form an atom of helium. In this process, some of the mass of the hydrogen is converted into energy. The sun and the stars do this by gravity. Gravity कहते हैं कशिश को, कशिश शक्ल को. फिशन क्या होता है एंड फ्यूजन क्या होता है? दे आर न्यूक्लियर रिएक्शंस दैट प्रोड्यूस एनर्जी. इनसे एनर्जी बनती है, ये रिएक्शन हो जाती हैं, न्यूक्लियर रिएक्शन कहते हैं. फिशन मीन्स splitting of heavy nucleus into two lighter nuclear. So fusion is the process where two light nucleus combine together, releasing vast amounts of energy. अब on the basis of ownership हम पढ़ेंगे कि जो रिसोर्सेज हैं उनकी कितनी किस्में हैं. पहला है इंडिविजुअल रिसोर्स, दूसरा है कम्युनिटी रिसोर्स, तीसरा है नेशनल रिसोर्स और चौथा है इंटरनेशनल रिसोर्स. यानी अगर हम ओनरशिप की मालिकाना हुकूक की बात करें तो उस तरह से भी हम इनको बांट सकते हैं. रिसोर्सेज विच आर ओन्ड बाय एन इंडिविजुअल एंड कैन नॉट बी असेस्ड बाय समवन एल्स, उनको कहते हैं इंडिविजुअल रिसोर्सेज. उनको प्राइवेट रिसोर्सेज भी कहा जाता है, जैसे लैंड है, हाउसेज है, कार है. कम्युनिटी रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज दैट सेटिस्फाई द वांट्स ऑफ ए कम्युनिटी इन होल, इन जनरल. फॉर एग्जांपल स्कूल है, हॉस्पिटल है. तो तीसरा है नेशनल रिसोर्स. नेशन रिसोर्सेज हैं विच आर ओन्ड बाय ए नेशन. फॉर एग्जांपल रिवर है, पार्क है, रेलवे है, भाखड़ा डैम है, एक नेशन इनको ओन करता है. रिवर गंगा है. तो इंटरनेशनल जो है रिसोर्सेज हैं, तो ग्लोबल रिसोर्सेज भी इनको कहते हैं, जैसे लाइक मिनरल्स, गैस, रॉक्स, माउंटेन्स एंड वैलीज. ये इंटरनेशनल रिसोर्सेज जो हैं विच कैन बी used by everyone without any boundary, without any discrimination. They are called international resources. अब आपको समझ आया कि on the basis of ownership, resources can be classified into 4 types. Number 1, individual resources, community resources, national resources and international resources. मुझे भरोसा है कि आपको ये पूरा समझ आया होगा. इंशाअल्लाह अगली वीडियो में हम आगे बात करेंगे. खुदा हाफिज़.